Hello friends, welcome to my video session on heredity and evolution part 5. In this video, we are going to cover theory of natural selection, Lamarckism and human evolution. Let's start with Darwin's theory of natural selection, friends. For this theory, Darwin needed lots of observation to prove this theory. For this purpose, he spent 5 years on island to do observation on various plant and animal. Let's start with the theory, friends. Charles Darwin had done lots of observation on various plant and animals. From his observation, he published his theory of natural selection in his book Origin of Species. In his theory, he says all the organisms compete with each other in life-threatening manner. In this competition, only those organisms sustain which show the modification essential for winning the competition. He says all organisms अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे से compete करते हैं and इस competition में only वही survive करता है जो जीतने के लिए essential modification करता है. Okay friends, nature also plays important role because nature select only those organisms which are fit to live. ठीक है फ्रेंड्स, नेचर भी सेम करता है, जो फिट टू लिव है उनको ही एक्सेप्ट करता है. अब इसके साथ साथ क्या हुआ फ्रेंड्स, एट दैट टाइम सर डार्विन की थियोरीज के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन भी उठे. तो वो ऑब्जेक्शन क्या क्या थे फ्रेंड्स? नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन. There is no explanation about slow changes and abrupt changes. In respect of all those objections, Darwin's work on evolution has been a milestone. Okay friends, अब हम लामार्किज्म पे बात करते हैं. लामार्क was the naturalist who discovered the word biology. Means वो वर्ड बायोलॉजी के फाउंडर थे. ठीक है, इन लामार्किज्म लामार्क प्रपोज दैट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इवोल्यूशन. मीन्स वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में लेजी है या एक्टिव है, इससे क्या होता था उसके आगे के इवोल्यूशन के या फिर आने वाली जनरेशन के इवोल्यूशन के ऊपर फर्क पड़ता है. अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स. ठीक है, अब इससे क्या होता है, इस थियरी में हम लोग को क्या समझ में आता है, अगर वो लेजी है तो क्या होगा, उसके आने वाली जनरेशन भी क्या होगी, लेजी होगी और वो भी थोड़ी फैटी होगी, मोटी होगी फ्रेंड्स. अगर वो फिट रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है, तो उसके आने वाली जनरेशन भी क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी. अब मैं थियरी को वापस से पढ़ता हूँ फ्रेंड्स. The French naturalist proposed that each animal or plant undergo changes in his lifespan and those changes are transferred to the next generation and such a change occur in next subsequent generation too. But this theory was not fully accepted. ठीक है, ये theory fully accepted नहीं थी पर बहुत ज़्यादा इसको accept किया गया था उस टाइम पे. ठीक है फ्रेंड्स, अब लामार्क ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए जिराफ का एग्जाम्पल दिया था फ्रेंड्स. He said that the neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. Okay friends, अब हम बात करेंगे स्पेसिएशन पर. So what is speciation? Speciation is evolutionary process by which population evolve to become distinct species. अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड एज स्पेसिएशन. अब आप पूछोगे कि स्पेसीज क्या होती है फ्रेंड्स. ठीक है फ्रेंड्स, अब स्पेशीज क्या होती है उसके बारे में देखते हैं. Species are the group of organisms that can produce fertile individual through natural reproduction. Each species grow in specific geographical condition. Their food, habitat, reproductive ability, and period of living is different. However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one. ठीक है, अब हम लोग को क्या समझ में आ गया, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही क्या होता है, स्पेसिएशन होता है फ्रेंड्स. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन पर. ये एक ब्रीफ टॉपिक है फ्रेंड्स. लेट्स स्टार्ट. आफ्टर डिसअपियरिंग डायनासोर्स अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो, monkey like animal are said to be evolved from some ancestor who were similar to the modern lemurs. ठीक है फ्रेंड्स, डायनासोर के डिसअपियर होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो मंकी लाइक एनिमल का इवोल्यूशन मॉडर्न ल्यूमर्स से जैसे एनिमल से हुआ. ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, उनमें डेवलपमेंट हुआ. The development took place in those monkey-like animal. There was development in brain and hands. उनके brain और hand में enlargement और development हुआ. From those development, ape-like animal evolved. ठीक है, उनके जो brain में और hand में enlargement और development हुआ जिसके वजह से किसका evolution हुआ, ape-like animal का evolution हुआ. अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो ape-like animal था वो कहाँ पर चले गया, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया. ठीक है, और वो किस में इवॉल्व हुआ फिर, गिबन और ओरेंगुटन में. ठीक है, वो भी सिमिलर था एप लाइक एनिमल से. ठीक है, अब क्या हुआ, दोज एप स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू ड्राई वेदर. ओके,
Due to this, their lumbar bone developed in such a way that they started to stand in erect posture in grassland, and thereby their hands became available for use anytime. These first human-like animal with erect posture which were using their hand were evolved about 2 करोड़ years ago. ठीक है, उनका इवोल्यूशन कब हुआ था? 2 करोड़ years ago. और उनका नाम क्या था फ्रेंड्स? एंड दे वर नेम्ड एज Ramapithecus. क्या नाम था फ्रेंड्स उनका? Ramapithecus. Okay friends, about 20 lakh years ago, the morphology of those human-like animals started to be appear like member of genus Homo. अब उनकी जो मॉर्फोलॉजी थी वो कैसे होगी? मॉर्फोलॉजी मतलब बॉडी शेप कैसा हो गया? एक स्पेशी होमो के मेंबर जैसा हो गया. कैसा हो गया फ्रेंड्स? स्पेशी होमो के मेंबर जैसा हो गया. एंड अबाउट 15 lakh years ago, skilled men developed and were using stone to make tools. Also, human walking with erect posture was evolved. ठीक है, उसके बाद 15 लाख ईयर्स अगो क्या हो गया फ्रेंड्स? अब स्किल्ड ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ. अब वो स्किल्ड ह्यूमन था, वो क्या कर सकता था? सिर्फ वो स्टोन का यूज़ कर सकता था. किसके लिए? टूल बनाने के लिए. ओके, अब ये इवोल्यूशन और 1 लाख ईयर्स तक होते रहा. ठीक है, और उस पीरियड में ह्यूमन ने फायर का डिस्कवरी किया और उसको कंट्रोल करना स्टार्ट किया. देन brain of 50,000 years old men had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as member of class wise men. ठीक है, अब उसका क्लासिफिकेशन किस में हो गया? क्लास वाइस मैन में हो गया. एंड उसको हम लोग क्या बुलाते थे? उनको हम लोग बुलाते थे नेंडरथल मैन. ठीक है, 50,000 years old मैन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेंडरथल मैन. 50,000 years old मैन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेंडरथल मैन. ओके, अब ह्यूमन इवोल्यूशन और आगे बढ़ा. ठीक है, अबाउट 10,000 years ago, wise men started to practice the agriculture. It started to raise cattle herds and establish the cities, and cultural development took place. Okay friends, art of writing was invented about 5,000 years ago, and thus the history had been started. अभी आर्ट ऑफ राइटिंग स्टार्ट हुआ 5,000 years ago, और उसके साथ साथ ही हिस्ट्री का भी राइटिंग स्टार्ट हुआ. उसके बाद का हम लोग को अभी एकदम कन्फर्म मालूम है. अबाउट 400 years ago क्या हो गया? साइंटिस्ट इमर्ज हुए. ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टार्ट हुई कब? 200 years ago. एंड नाउ वी हैव रीच्ड एट दिस स्टेज. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. अभी देख लेते हैं फटाक से इस वीडियो का समरी. ठीक है, आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या किया है? आज के वीडियो में हम लोगों ने डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखा, उसके बाद लामार्किज्म देखा, फिर स्पेशिएशन देखा, उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन को देखा. आज से हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे भी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स. और आपका पहला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, वायरसेस आर बायोटिक ऑर्गेनिज्म और नॉन बायोटिक ऑर्गेनिज्म. इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दे सकते हो या फिर आई बटन पर भी दे सकते हो, जिसमें एक आपको पोल मिलेगा. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. थैंक यू.